Hello 11th class political science students. Welcome back to our channel. Today we are going to add a new part in the chapter, and till now we are able to get the basic of the chapter, in which basically we have discussed what is the meaning of election, what is the meaning of representation. Along with that we have discussed types of democracy, direct democracy and representative democracy. After that we have discussed the major, or you can say different methods of election, in which we have discussed FPTP system, that was first past the post, and after that we have also discussed proportional representation, that is also known as PR system. Okay, in the last class we discussed that there are some representatives in India who are elected with the help of PR, proportional representation. We have discussed that proportional representation can be of different type, right? According to the requirements of the country, we can use different method of proportional representation. As we have discussed that whole of the country can be divided into a single constituency, right? We have seen the example of Israel. Along with that, there is a system in which whole of the country, all of the parties basically, they provide or they issue the list of the candidates, which is known as list system of proportional representation. And third system is also there, which is single transferable vote system. And the system which is followed in India for the election of Rajya Sabha member, that is the same single transferable vote system. So what is this system? How does it work? That we are going to discuss today. So basically today firstly we will discuss that how the members of Rajya Sabha are elected in our country. So as we have already discussed, they are elected with the help of PR system. Let us discuss now a third variant of PR, the single transferable vote system, is followed for Rajya Sabha elections. Every state has a specific quota of seats in the Rajya Sabha. अब देखो क्या होता है, राज्य सभा में हमारी सीट्स होती टोटल 250, and from those 250, 238 members are elected basically with the help of single transferable vote system, proportional representation, and 12 members are nominated by the president of the country, right? जिन्होंने किसी, मतलब कोई आर्ट का एरिया है, एजुकेशन का एरिया, लिटरेचर का एरिया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है, those person are nominated by the president of the country, right? So होता क्या है, we are having total 250 members. तो इन 250 मेंबर्स में से बेसिकली क्या होता है, हमें देखते हैं कि किस स्टेट को कितना कोटा देना, मतलब किस स्टेट से कितने मेंबर्स राज्यसभा में जाएंगे. सपोज राज्यसभा में अगर मेंबर्स की अगर आप देखते हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा से 5 मेंबर्स जाते हैं, राइट, पंजाब से 7 मेंबर्स जाते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बेसिकली इट इज सेड कि इस पर्टिकुलर स्टेट से इतने मेंबर्स जाएंगे, राइट. सो द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. और ये जो मेंबर राज्यसभा में जा रहे हैं, इन मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है, राज्यसभा के इलेक्शंस डायरेक्ट नहीं होते हैं. आप लोगों ने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स मतलब वोट करते हैं, टिल नाउ यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, बट योर पेरेंट्स आर वोटिंग, राइट. लेकिन वो कभी राज्यसभा के लिए वोट नहीं करते हैं, दे आर वोटिंग फॉर लोकसभा, बिकॉज लोकसभा इज द लोअर चैम्बर एंड दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. Okay, the voters are the MLAs in the state. So basically, जो लोग वोट करते हैं इन द इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, वो होते हैं हमारे स्टेट के, उस पर्टिकुलर स्टेट के MLAs. Every voter is required to rank candidates according to his or her preferences. Basically देखो इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में जो वोटर्स होते हैं, वोटर्स वोट कास्ट नहीं करते हैं, वोटर्स क्या देते हैं, वोटर्स देते हैं प्रेफरेंसेस. अब देखो इसका क्या मतलब होता है, वोटर्स विल गिव देयर प्रेफरेंसेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर वर्ड, मतलब आप ये नहीं बताते हो कि मेरे को इस पर्सन को चुनना है. सपोज 4 कैंडिडेट्स हैं आपके वहां से फॉर टू बी इलेक्टेड फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सपोज आई एम कास्टिंग द वोट, आई एम गिविंग माई वोट. तो व्हाट आई विल डू, मैं
उस बेस पे प्रेफरेंसेस प्रोवाइड करवाती हूँ। प्रेफरेंसेस कैसे? आई विल से दिस मेंबर शुड बी इलेक्टेड ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब उसको मेरे को फर्स्ट चॉइस देनी है। अगर वो पर्सन बाई चांस किसी वजह से विन नहीं कर पाता इलेक्शन को, तो जिसको मैंने सेकंड चॉइस दी है वो विन हो जाए। तो सपोज कि आपकी क्लास में मॉनिटर का इलेक्शन हो रहा है, प्रेफरेंसेस का मतलब कैसे कि आपकी क्लास में 3 और 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो फाइट कर रहे हैं फॉर दी क्लास मॉनिटर इलेक्शन। उसमें देखो वोट तो क्या होगी कि आपने किसी एक को वोट डाल दी, राइट? लेकिन ये सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे कि यहाँ आप वोट नहीं डालोगे, आप चॉइसेस डालते हो। मान लिया 4 कैंडिडेट्स हैं, तो सबसे पहले आप जिसको फेवर करते हो आप फर्स्ट चॉइस उसको देते हो। मान लिया वो आपका फ्रेंड है, तो यू विल से दिस पर्सन शुड बी फर्स्ट चॉइस और शुड बी क्लास मॉनिटर ऑन माय फर्स्ट प्रेफरेंसेस, राइट? लेकिन फिर आप क्या सोचते हो, जरूरी तो नहीं कि जिसको आप पसंद करते हो उसको क्लास के और बाकी बच्चे पसंद करते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि अगर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वाला पर्सन क्लास मॉनिटर नहीं बनता, तो सेकंड वाला बन जाए। क्योंकि आप क्या सोचोगे कि ये चलो मेरा ये बेस्ट फ्रेंड नहीं बनता ना, तो मेरा क्लोज फ्रेंड बन जाए, राइट? तो आप फिर क्या करोगे, आप अपनी सेकंड प्रेफरेंस पे डाल दोगे उस उस अपने क्लोज फ्रेंड को। फिर क्या होगा, फिर अगर वो भी नहीं बन पाता, देन यू विल से कि जो आपका जस्ट फ्रेंड है वही क्या बन जाए, आपका क्लास मॉनिटर बन जाए। मतलब व्हाट वी हैव सीन कि आपको प्रेफरेंसेस देने की, फर्स्ट नंबर पे आप किसको क्लास मॉनिटर देखना चाहते हो, सेकंड नंबर पे किसको, थर्ड पे किसको और फोर्थ पे किसको। द सेम मैनर, द सेम मेथड इज यूज्ड इन द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। वहां पे आपको वोट्स नहीं डालनी है, वहां पे हमें ये देखना है कि आपने प्रेफरेंसेस किसको देनी है। होप नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? लेकिन इसमें देखो क्या होता है, टू बी डिक्लेयर द विनर अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम कोटा ऑफ द वोट्स विच इज डिटरमाइंड बाय अ फॉर्मूला। अब अगर कोई पर्सन विनर डिक्लेयर होना चाहता है, एनी पर्सन वांट टू बी द विनर, तो उसके लिए ना एक डेफिनेट कोटा होता है। एंड व्हाट्स दैट कोटा? टोटल वोट्स पोल्ड, जितनी टोटल वोट्स पड़ी हैं, मतलब जितनी टोटल वोट्स कास्ट हुई हैं। उसके बाद यू विल डिवाइड दैट पर्टिकुलर टोटल नंबर विद टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, जितने मेंबर्स इलेक्ट होने हैं। क्योंकि अब देखो, एक पर्टिकुलर एरिया से जितने मेंबर्स इलेक्ट होने आप वो करोगे, उसके प्लस में 1 करोगे, राइट? और देन यू विल ऐड +1 इन होल ऑफ द आंसर। ये होता है आपका फॉर्मूला। गॉट इट? लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल, इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो, फॉर एग्जांपल, if 4 Rajya Sabha members have to be elected by 200 MLAs in Rajasthan, the winner would require। अब देखो, अगर मान लिया राजस्थान से हमने 4 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, तो क्या होगा, टोटल क्या जो टोटल जो वोट्स पोल होती हैं, अब देखो वहां पे कितने हैं मेंबर्स, कितने इलेक्ट होने हैं, 4 मेंबर्स इलेक्ट होने हैं। उनको वोट कितने लोग करने वाले हैं, 200 MLAs वोट करने वाले हैं। तो अब जो विनर होगा उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि उसके पास एटलीस्ट कितने वोट्स होने चाहिए? तो टोटल वैलिड वोट्स, जितनी वोट डली हुई है टोटल, डिवाइड करोगे आप कि जितने आपके मेंबर्स इलेक्ट होने हैं, मतलब 4 मेंबर्स इलेक्ट होने हैं। उसके बाद आप उसमें +1 करोगे, राइट? आप उसमें +1 कर दिया, तो मतलब आपने क्या कर दिया कि आपने क्या किया, आपने इसको क्या किया, 4 + 1 = 5। 200 से आपने उसको डिवाइड किया, तो 40 आपका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे +1 भी है, तो आप 1 और ऐड कर दोगे, तो इट मीन्स होगा टोटल 41 वोट्स। समझ आया? मतलब पहले आपने ये चेक करना है कि टोटल वैलिड वोट्स कितनी डलनी है। आफ्टर दैट यू विल चेक कि टोटल मेंबर्स कितने इलेक्ट होने हैं। गॉट इट? उसमें आप 1 प्लस कर दोगे, दिस इज द फॉर्मूला ओनली। और उसके बाद द होल आंसर यू विल गेट एंड यू विल ऐड इन द लास्ट, you will add 1 in the last answer. Hope now it's completely clear to all of you. When the votes are counted, it is done on the basis of first preferences, votes secured by each candidate. अब जब वोट अब काउंटिंग होती है वोट्स की, तो कैसे काउंटिंग होती है कि ये चेक किया जाता है कि किस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस पे कितनी कितनी वोट्स मिली हैं। अब हमने देखो क्या देखा है कि 41 वोट्स चाहिए, तो अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से 4 कैंडिडेट्स हैं जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस पे 41 41 41 41 वोट्स मिल रही हैं। कैसे 4 कैंडिडेट्स हैं आपके पास? गॉट इट? तो मतलब फर्स्टली वी ट्राई टू चेक दैट फर्स्ट प्रेफरेंस इज यू कैन से इज गेन बाय हाउ मेनी पीपल।
गॉट इट। अब उसके बाद फिर क्या होता है, preference is votes secured by each candidate of which the candidate has secured the first preference votes. If after the counting of all first preference vote, a required number of candidates fail to fulfill the quota, then candidates who secured the lowest vote of first preferences is eliminated and his or her votes are transferred to those who are mentioned as second preference on those ballot papers. अब देखो क्या होता है, अभी हमने क्या स्टडी किया कि पहले सबसे पहले हम क्या चेक करने की कोशिश करते हैं कि किस मेंबर को प्रेफरेंसेस मिली हुई हैं, राइट। गॉट इट। मतलब 41 41 41 41 चार कैंडिडेट्स को मिली है। बट नाउ सपोज एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक भी मेंबर को 41 सीट्स नहीं मिली, 41 वोट्स नहीं मिली, तो व्हाट यू विल डू नाउ? तो हम क्या करेंगे, जिसको सबसे कम वोट्स मिलती है ना, जिस पर्सन को सबसे कम वोट्स मिली, राइट, कोई ऐसा पर्सन है जिसको सबसे कम वोट्स मिली, राइट। अब आप क्या करोगे, जिसको सबसे कम वोट्स मिलती हैं उसको आप डिक्लेयर कर दोगे कि एलिमिनेट हो गया, नाउ दैट कैंडिडेट हैज बीन एलिमिनेटेड। लेकिन उसको एलिमिनेट करने से आपका काम खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो जो पर्सन एलिमिनेट हुआ है उस पर्सन को भी तो किसी ना किसी ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा होगा ना, ऑल्दो ही इज हैविंग लीस्ट वोट्स, बट उसको भी तो किसी ने क्या किया होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा होगा, राइट। अब उसके वोट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। मान लिया जो कैंडिडेट अब आपका आउट हुआ है उसको किसी कैंडिडेट ने रखा है फर्स्ट नंबर पे, तो उसने जिस कैंडिडेट को, अब फर्स्ट तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो अब जो उसकी सेकंड थर्ड फोर्थ चॉइस थी वो बन जाएंगे अब उसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड चॉइस। इट मींस एक कैंडिडेट जब बाहर हुआ तो जिस पर्सन ने उसको फर्स्ट चॉइस में रखा था उसकी सेकंड थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस भी होंगी, तो अब उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस बिकॉज इट हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द इलेक्शंस, तो फिर वो क्या होगा, उसने जिसको सेकंड वोट दी है वो अब उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि अगर आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बनता तो आपका क्लोज फ्रेंड बन जाए। एबल टू कनेक्ट, कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला नहीं बनता तो कम से कम सेकंड चॉइस वाला बन जाए। गॉट इट। और उसके बाद क्या होता है, वो ऐसे ही कंटिन्यूअसली वो सीट्स क्या होती है, बाइफरकेट होती चली जाती हैं। उसके बाद ये चेक किया जाता है कि अब क्या मेंबर्स हैं, अब ऐसा मतलब अब किसी को 41 वोट्स मिल गई हैं। गॉट इट। अब जब अगर सेकंड चॉइस के बाद, सेकंड काउंटिंग के बाद, सेकंड प्रेफरेंसेस को ऐड करने के बाद अगर एक कोई पर्सन है, कुछ ऐसे पर्सन हैं जो 41 41 41 और 41, मतलब चार कैंडिडेट्स हमें सेलेक्ट करने थे ना, तो अगर कोई चार पर्सन 41 41 सीट्स गेन करने में, वो सॉरी वोट्स गेन करने में सक्सेसफुल हैं, देन इट इज फाइन। वरना ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन रहती है जब तक कोई भी एक कैंडिडेट, जब तक जितने हमें सेलेक्ट करने थे चार कैंडिडेट, तो जब तक कोई चार कैंडिडेट इस पर्टिकुलर पोजीशन को गेन नहीं कर लेते। अंडरस्टूड इट? ऑल्दो इट इज कॉम्प्लिकेटेड बट आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। मतलब आपको करना क्या है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन इन द सिंपल वर्ड्स। आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमने वोट्स किस बेस पे देनी है। वी आर नॉट गोइंग टू कास्ट द वोट्स डायरेक्टली, वी आर गोइंग टू कास्ट आवर प्रेफरेंसेस। गॉट इट। उसके बाद जब आपने वोट कास्ट करनी है तो उसके बाद क्या होगा, प्रेफरेंसेस देते हो, जैसे फर्स्ट चॉइस पे आई वांट सी हिम एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, सेकंड चॉइस आई वांट सी हिम एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये चीजें होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब वोट्स काउंट होती हैं वो कैसी होती है, दैट देयर इज अ डेफिनेट कोटा फॉर दैट। एंड व्हाट इज दैट कोटा, कि टोटल वोट्स जितनी डली हुई हैं डिवाइड बाय जितने मेंबर्स आपको सेलेक्ट करने हैं प्लस वन, एंड द आंसर यू विल गेट, बट यू विल ऐड वन इन द आंसर एज वेल, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान स्टेट। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने यही स्टडी किया कि सिंगल ट्रांसफरेबल में पहले आपने एक कोटा गेन कर लिया, वो कोटा अगर फर्स्ट प्रेफरेंसेस में चार कैंडिडेट्स एबल हो जाते हैं गेन करने में, देन इट इज फाइन। वरना क्या होगा, जिसको सबसे कम वोट्स मिलेंगी उस पर्सन को हम एलिमिनेट कर देंगे और उसकी वोट्स को प्रेफरेंसेस के बेस पे बाइफरकेट कर देते हैं, डिवाइड कर देते, ट्रांसफर कर देते हैं। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। होप नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम रीजन स्टडी करने वाले हैं कि इंडिया ने अडॉप्ट क्यों किया एफपीटीपी सिस्टम। अब देखो ये वाला सिस्टम समझने में आपको ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एंड यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस,
So now think those person who are common people of our country, how they will be able to get it, right? उनको तो समझ ही नहीं आएगा. So the answer is not very difficult to guess. If you have carefully read the book explanation, the Rajya Sabha election, you would have noticed that this is a complicated system. क्योंकि अगर आपने ऊपर वाला सिस्टम पढ़ लिया तो आपको अंदाजा हो जाएगा व्हाई डिड वी अडॉप्ट एफपीटीपी सिस्टम, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, राइट? ओके, विच में वर्क इन अ स्मॉल कंट्री बट वुड बी डिफिकल्ट टू वर्क इन अ सब कॉन्टिनेंटल कंट्री लाइक इंडिया. क्यों नहीं हम लोग इस सिस्टम के साथ गए? क्योंकि हमें पता है कि ये छोटी कंट्री के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन बड़ी कंट्री के लिए जो कॉन्टिनेंटल सब इंडिया को बोलते हैं ना सब कॉन्टिनेंट, राइट? तो ऐसे इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए ये वोटिंग सिस्टम एलिजिबल नहीं होता है. गॉट इट? द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस ऑफ द एफपीटीपी सिस्टम इज इट्स सिंप्लिसिटी. अब देखो यहाँ से आपका ना डायरेक्ट आंसर फ्रेम हो रहा है फॉर द सेम क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी सिस्टम. तो फर्स्ट आपको क्या लिखना है? बिकॉज ऑफ द because it was very complicated proportional representation, right? And that's why we did not opt it. And second is FPTP system was very popular, and the reason for its popularity and success is the simplicity of the system. मतलब आपको कुछ चेक नहीं करना है, बस ये देखना है कि आप औरों से ज्यादा वोट गेन कर पा रहे हो, देन इट मींस यू आर द विनर. देखो स्कूल्स में यही होता है ना, आप अगर आपको फर्स्ट पोजीशन चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको यही तो देखना है कि आपको औरों से ज्यादा नंबर मिलने चाहिए, दैट्स इट. You will be the winner, you will be first position holder of the class. Got it? So the entire election system is extremely simple to understand even for common voters who may not have specialized knowledge about politics and elections. अब ये सिस्टम हमने जो ऑप्ट किया, अडॉप्ट किया, उसका एक और रीजन ये भी था क्योंकि ये सिंपल है एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर दोज पीपल ऑल्सो हु डू नॉट हैव दैट मच नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन. जिनके पास पॉलिटिक्स और इलेक्शन का ज्यादा नॉलेज नहीं होता है उनके लिए भी इजी है. दिस इज ऑल्सो अ क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. और इसके अलावा भी क्या है, एक क्लियर चॉइस है भाई, है ना? आपने प्रेफरेंसेस नहीं देनी, आपने नहीं देखना कि इसको मेरे को फर्स्ट पे रखना है, इसको सेकंड पे, इसको थर्ड पे, इसको फोर्थ पे. आपको क्लियर कट चॉइस देनी है कि ये नहीं तो फिर कोई भी नहीं, है ना? सपोज यू आर द फॉलोवर ऑफ बीजेपी, देन यू विल गिव योर वोट टू बीजेपी ओनली. इफ यू आर सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, देन यू विल गिव योर वोट टू कांग्रेस ओनली. Understood it? It means clearly you will have to give your vote. You will not give preferences or choices. उसमें कहीं ना कहीं डिलेमा होने की सिचुएशन हो जाती है. सपोज जैसे दो पर्सन है जिन दोनों को आप पसंद करते हैं, राइट? देन हाउ कैन यू चूज? बट यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको एक ही पर्सन को चूज करना है ना? देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ कंफ्यूज. Along with that, voters have to simply endorse a candidate or a party while voting. हमें सिर्फ क्या करना होता है, एक पार्टी को चूज कर लेना होता है. Depending on the nature of actual politics, voters may either give greater importance to the party or to the candidate or balance the two. और इसके अलावा देखो क्या होता है, हमारे पास सिंपल चॉइस है. सिंपल चॉइस कैसे? अब देखो, अब आप किसी को भी इंपॉर्टेंस दे सकते हो. आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो कैंडिडेट को भी, आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो पार्टी को भी, राइट? और यू कैन मेक अ बैलेंस ऑफ बोथ. गॉट इट? मान लिया आपको सारी पार्टीज दिख रही हैं, आपको सारी पार्टीज में से आपको दिख रहा है कि कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है, बट एक पार्टी को तो वोट देनी है. सारे कैंडिडेट जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे नहीं है, बट उसमें से एक को तो आपको वोट देनी है. सो यू विल ट्राई टू मेक अ बैलेंस ऑल्सो. गॉट इट? सो इसमें देखो क्या है, वो आप किसी को क्या कर सकते हो, वोटर में इधर गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस. आप या तो पार्टी को भी दे सकते हो इंपॉर्टेंस, या फिर कैंडिडेट्स को भी दे सकते हो, या फिर बैलेंस बना सकते हो. द एफपीटीपी सिस्टम offers voters a choice not simply between parties but specific candidates, है ना? अब देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या स्टडी किया था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक आई नो, राइट? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज इजी ऑल्सो. अब देखो क्या होता है, जब आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो तो उसमें क्या होता है, यू विल गिव योर वोट्स टू योर पार्टी जिसको आप फेवर करते हो. बट यहाँ आप क्या करते हो, यू जस्ट पुट योर वोट इन द फेवर और इन द अगेंस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक कैंडिडेट, है ना? अब इसमें इन द
other electoral systems, especially PR system, voters are often asked to choose a party and the representatives are elected on the basis of party list. यहाँ पर देखो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना, वहां आपका क्लोज रिलेशन होगा किसके साथ? दोज पर्सन हु आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, because they all are from your own area only and you better know them, right? So it is easy for you to choose a people, है ना? अभी पढ़ा ना, आप पार्टी और कैंडिडेट्स में बैलेंस भी बना सकते हो। आप पार्टी को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, आप कैंडिडेट को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, या फिर आप दोनों में बैलेंस भी बना सकते हो। इन द सेम मैनर, बट इसके ऑपोजिट क्या होता है, जब आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो, आप कैंडिडेट से आपका इतना कोई रिलेशन होता ही नहीं है। यू जस्ट सी विच पार्टी इज देयर टू whom यू आर गोइंग टू कास्ट योर वोट। क्योंकि क्या होता है, पार्टीज की लिस्ट आती है और जिस पार्टी को आपने वोट दी उसको जितने परसेंट वोट्स मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग उसको सीट्स मिल जाएंगी लोकसभा में, किसी भी कंट्री की पार्लियामेंट में। Got it? So as a result, there is no one representative who represent and is responsible for one locality. अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, देर इज अ प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम क्या है, अब देखो हमारे इस वाले सिस्टम में एफपीटीपी में क्या है, देर इज वन एमएलए वन एमपी फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उस एक पर्सन के ऊपर होती है। लेट अस टेक द एग्जांपल फ्रॉम योर ओन लाइफ ओनली। अब देखो जैसे आपके क्लास इंचार्जेस होते हैं, है ना, आपकी क्लास कुछ भी गलत करती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर हो जाती है? योर क्लास इंचार्ज। एवरीवन विल से टू हिम और हर दैट योर क्लास इज वेरी नॉनसेंस। अगर कुछ अच्छा होता है देन योर टीचर फील प्राउड दैट यस दिस इज माय क्लास, राइट? तो मतलब वन पर्सन इज देयर इन योर स्कूल हु इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल टू यू ओनली, राइट? ही और शी इज कंप्लीटली आंसरेबल टू यू ऑल्सो। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ, लिस्ट दे दी। अब जरूरी तो नहीं है जिस जितनी आपको वोट्स मिली हैं उस पर्टिकुलर पार्टी को, उसमें जो मेंबर सेलेक्ट होके गए हैं, तो जरूरी थोड़ा ना आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो, राइट? तो मतलब वो जो एक आंसरेबिलिटी होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक लोकेलिटी की, वो आपको कहीं ना कहीं मिसिंग मिलती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। और हमारी कंट्री में क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, तो प्रॉब्लम्स भी उतनी ज्यादा है। And if we want to tackle them all those problems in a proper manner, then we will have to choose person from their own area only who understand their problems. That's why India has adopted FPTP system. Along with this, in constituency based system like the FPTP, the voters know who their own representative is and can hold him or her accountable. ये वही बात है कि आप ये चेक करते हो कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है, बिकॉज यू नो हिम, you know her, right? And that's why you can told him or her also that he or she is answerable to you. Otherwise in next election you are not going to cast your vote to him, you are not going to cast your vote to her. तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाती है एफपीटीपी सिस्टम में। प्रोपोर्शन में क्या होता है, यू आर गिविंग द वोट्स, यू आर गिविंग योर प्रेफरेंसेस टू द वन पार्टी ओनली, उस पार्टी के बेस पे कैंडिडेट्स आ जाते हैं इन द पावर। बट there is no any responsibility answerability of any specific individual toward a specific area, toward a specific part locality. That's why we have adopted fptp system, right? तो क्या समझ आया आपको कि इंडिया ने एफपीटीपी सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? सबसे फर्स्ट रीजन तो इसकी सिंप्लिसिटी, right? Because India is that type of country in which a lot of people are illiterate also. तो उन लोगों को भी इजीली अंडरस्टैंड कराने के लिए सिस्टम जरूरी है। अलोंग विद दैट जो एफपीटीपी सिस्टम है उसकी पॉपुलैरिटी और सक्सेस रेट ज्यादा है, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? अलोंग विद दैट इसके अलावा जो रीजन है वो क्या होता है, इसके अलावा बिकॉज वी नो द कैंडिडेट्स in better manner who are fighting the elections, so we can give importance to the voters also, to the party also, sorry, to the candidates also and to the party also, and we can make a balance also. But वहां पे क्या होता है proportion में, that you see the party only, got it? Along with that
FPTP system ensures the accountability and answerability of those person who are elected. बट जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें पूरी की पूरी कंट्री एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी डिवाइड हो सकती है, तो वहां पे एक लोकेलिटी के लिए कोई एक सिंगल आपको रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल बॉडी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं मिलेगा. And because in our country we want to ensure accountability and answerability on each and every aspect, that's why we have adopted this particular system, that is FPTP system, right? I hope now the reason behind the acceptance of FPTP system is completely clear to all of you, and you are able to understand the basic differences also between FPTP system, proportional representation, and you are able to compare also with the help of examples, right? I hope till now everything is completely clear to you. Next part of the chapter we will do in next video. Till then, keep revising. Please try to revise it, try to understand it. If you are not able to understand, listen it twice or thrice. It will be clear to all of you. Okay, next part we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.